Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video, I am going to tell you how to fill DU admission forms. So first of all, go to Google and make sure that you are using PC for filling this form, and it should be on Google. So DU admission 2020, write this and you will get an admission page of Delhi University, and click on it and you will come to this page where you will get admissions link. So here you are with UG admissions. So you need to click UG admissions 2020-21. Under this you will have a link to portal. So click on that link, and now here we are on the page of UG admissions 2020. Now what you need to do is you need to go to new registration option if you are not registered yet. If you are registered, then you can use this part, the right hand side part. If you are not registered, you have to go to new registration. Now here we are with registration for admission to UG courses 2020. So first of all, you need to fill applicant's full name. So you have to write your name here and it should be full. So first of all, put the name. Then you have to write applicant's email address. Then in the third part, again you have to confirm email address. Then we have to make a strong password and it should have some 6 characters. So fourth part is done. Again we have to confirm the password. So put the same password as done in earlier part. Then we have to give mobile number. So now again you have to re-enter the number. Now you need to put the CAPTCHA here. So this is done. Now you have to click on the option register. Now you will get OTP on your mobile number as well as on your email ID. So whatever OTP you get, please fill on the given screen. Again we have to fill the CAPTCHA here. So this is done. You have to submit the OTP now. So this is done. Now you need to submit the OTP. So now your account is verified successfully and you have to log in to start application process. So whatever your registered email ID be, use it there. And then put your password, what you have kept. Then type the text as you can see on your screen. Then log in. It seems LUROIZ. So this is done. Now you will get this screen here and some instructions are given here for documents, as well as they want to tell you about whatever things you have to upload, the password size photograph or scanned copy of 10th mark sheet, 12th mark sheet. So this all things it is given here and you must read these all, then only proceed. So click on this, I have read the information, important information, and submit it.
Now here you need to fill 8 parts of this form. The first one is personal details. So here you need to write your name, middle name, last name, applicant's gender, and all that information you have to provide which you are. So here you need to choose category. First one is unreserved, that means general. And then there we are with other categories as well, that is OBC, SC, ST, EWS. So whatever you are, you have to choose that. All the information you need to provide them with the family details as well. Then you have ward quota. Ward quota means कि अगर आपके कोई पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हैं, कुछ काम करते हैं वहाँ पे, तो यू विल गेट द कोटा ऑफ दिस. सो इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल, अगर आपके पेरेंट्स काम नहीं कर रहे तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देना, नहीं तो येस कर देना. और अदर कैटेगरीज आर देयर एज वेल, लाइक विद पर्सनल, विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन, विडोज. सो देयर आर मेनी कैटेगरीज, यू हैव टू चूज ऑल दीज पार्ट. Then you have to give the correspondence address. जहाँ पे भी आप रहते हो वो एड्रेस टाइप करना है अपने यहाँ पे. एड्रेस टाइप करके अपने परमानेंट एड्रेस भी देना. परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो. अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो क्लिक इफ सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट. दोनों अगर सेम है तो ये वाला बटन. अगर दोनों सेम नहीं है तो प्रोवाइड देम विद बोथ द एड्रेस. देन यू हैव टू गिव देम बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड. जैसे कभी कभार क्या होता है कि रिफंड करना पड़ेगा उनको, आपको कुछ मनी वापस करनी है, आपने अगर एडमिशन ले लिया या कुछ ऐसा, तो अगर रिफंड होगा तो आपके ही अकाउंट में रिफंड होगा. देन विद द सेकंड वन, एकेडमिक्स. सेकंड केस में आपका आता है एकेडमिक्स. एकेडमिक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि उसने जो एप्लीकेंट है उसने थ्योरी भी पास करी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी सेपरेटली पास किया होना चाहिए. और एनी पेपर विद बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट विल बी कंसिडर्ड ओनली इन द रेशियो 70:30. तो जो भी रेशियो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, 70:30. और अगर आपके पास 2 लैंग्वेजेस सब्जेक्ट हैं तो बेस्ट 4 में सिर्फ एक लैंग्वेज काउंट होगी, ना कि दोनों. तो लैंग्वेजेस का लेकर मत चलना, सिर्फ एक लैंग्वेज के मार्क्स लगेंगे, 2 लैंग्वेजेस के मार्क्स नहीं लगते कभी भी. तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन सबसे पहले तो आपने फिल करना है. रिजल्ट स्टेटस बताना है कि पास्ड है या अवेटेड है. यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, CBSE एंड एनी अदर. देन यू हैव रिजल्ट स्टेटस कि पास किया है, अवेटेड है या अप्लाइड फॉर रीएवल्यूएशन. सो इस केस में तो सबका ही ज्यादातर का अवेटेड होगा क्योंकि अभी तो पेपर्स कईयों के हुए नहीं है 12th क्लास के. देन वी हैव बोर्ड रोल नंबर. जिनके हो गए हैं उनका भी रिजल्ट अभी अवेटेड है तो यू कैन फिल अवेटेड. बोर्ड रोल नंबर, यू हैव टू गिव देम योर बोर्ड रोल नंबर. देन यू हैव टू राइट द ईयर ऑफ पासिंग. जैसे अगर आपका अभी वाला साल है तो इट विल बी 2020. जो पिछले साल वाले बच्चे होंगे, अगर किसी को भरना होगा 2019 वालों को, तो दे हैव टू फिल 2019 फॉर क्लास 12th. नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड. You have to give the information about your school, type of school, location, medium of study. Medium of study means कि कौन सी लैंग्वेज से आपने पास की है. हिंदी लैंग्वेज स्टडीड अप टू. कौन सी क्लास तक हिंदी लैंग्वेज पढ़ी है आप लोगों ने. Have you studied any of these languages? So you have to give the information about these subject names. बंगाली, पंजाबी, अगर कुछ भी पढ़ा है अलग से तो आप इसके ऊपर टिक कर सकते हो एज अ yes और अदरवाइज no अगर आपने नहीं पढ़ा. देन यू हैव टू सबमिट दिस अगेन. थर्ड केस आता है आपके पास एंट्रेंस का. तो एंट्रेंस के लिए तो उन्होंने आपसे पूछा डू यू विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू कोर्सेज बेस्ड ऑन एंट्रेंस. तो अगर आप करना चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाई फॉर येस. अगर येस, एक बार अगर आप देखना चाहते हो कि हाँ कि कौन से कोर्सेज आते हैं एडमिशन के लिए, तो आप देख सकते हो येस करके. ये देखो यहाँ पे बीटेक के लिए यू हैव टू, इफ यू वांट टू अप्लाई यू हैव टू गिव एंट्रेंस टेस्ट. बीटेक के लिए, बीएससी के लिए, इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के लिए, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए, 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जनरल, एंड देयर आर सो मेनी. सो अगर आप देखना चाहते हो कि कौन से एंट्रेंस के अंदर आते हैं, सो यू हैव टू चूज येस, अदरवाइज चूज नो. कि अगर आपको कोई ऐसे कोर्स में अप्लाई नहीं करना जो एंट्रेंस वाले हैं, so you have to choose no and put submit here.
नेक्स्ट कोर्स आता है आपका फोर्थ वाला स्पोर्ट्स कोटा। तो अगर आपने फर्स्ट वाले में स्पोर्ट्स कोटा भरा होगा देन इट विल शो ऑप्शंस हियर। अब यहाँ पे इन्होंने मैंने स्पोर्ट्स कोटा नहीं चूज किया था तो इट इज शोइंग नो हियर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव ECA कैटेगरी। अगर ECA कैटेगरी के हो तो इट विल शो सम डिटेल्स हियर एंड यू हैव टू put the information of ECA activities here. Then the next one is uploads. Uploads में सबसे पहले तो आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है। उसकी फाइल का साइज 10 KB to 50 KB के बीच में होना चाहिए। एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट फाइल, देन यू हैव टू चूज द फॉलोइंग फोटो, देन यू हैव टू पुट द स्कैन signature of yours. So it will be again of 10 KB to 50 KB. Then you have to upload scanned copy of self-attested class 10th board certificate for the date of birth. So 10th board certificate की again आपको एक scanned copy चाहिए and it should be between 100 KB to 500 KB. So you have to select all these files and then you have to in the next step preview. Preview में क्या शो करेगा कि आपके डेटा कैसा नजर आ रहा है। अगर आपको एडिट करना होगा तो आप एडिट कर लेना प्रीव्यू में, अगर नहीं करना तो मत करना, फाइनल सबमिशन कर देना। बस दिस इज द इंफॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू रिलेटेड टू UG एडमिशंस एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।